ओके, सो यस्टरडे हम लोग जो बात कर रहे थे, चेकलिस्ट एंड क्यू शॉर्ट्स आ गया था। डिफरेंस बिटवीन ऐसे टाइप टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट इन ऐसे टेस्ट। द अरे लक्ष्मी, आपका कोई क्वेरी थी, आप पूछ लो, जो भी क्वेरी है आप पूछ लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी, क्या क्वेरी थी आपकी? सर एक मिनट सर, अभी एक हेलो। हाँ हाँ, सर मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी AK सिंह से पढ़ रही हूँ सर। जैसे तो अभी जो हमने स्टार्ट किया है ना सर हाँ हाँ। रिसर्च का, तो सर उसमें ना रिसर्च डिजाइन का अलग से चैप्टर है और सोशल साइंटिफिक रिसर्च का अलग से चैप्टर है। हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, मैं यही आपसे पूछ रही थी सर। जैसे हमने अभी साइंटिफिक स्टडी पढ़ी, जैसे मेथड ऑफ साइंटिफिक वाला रिसर्च का, तो सर वो दोनों चैप्टर्स में दिया हुआ है और दोनों को ही इंक्लूड करके देना होगा, कैसे करना होगा सर? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी वहां पे। आप जो आपका सिलेबस है उसके हिसाब से चलो। ओके सर। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है। ओके, है थैंक ना? यू सर। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो 10 से, क्योंकि हर उसमें सीक्वेंस अलग मिल सकता है। तो इन ऐसे टेस्ट एग्जामिनी राइट, किसी और का कोई क्वेरी तो नहीं है? अमित, प्रेरणा, तेजस, नो। Yes, sir. एनी क्वेरी? No, sir, नो। not yet. Okay. In essay test, the examinee write the answer in his own words, whereas in objective type test, examinee select the correct answer from among several given alternatives. That is the one difference. And the other one is thinking and writing are important in essay type test, whereas reading and thinking are important in objective type question. So thinking and writing, when you think, then only you can write, is important in essay type. Like you have to reconstruct the concept that you have read earlier, and then in MCQs you can say thinking, and then important thinking and reading. Like you have to read the answers and you have to find out which is the right answer. So definitely thinking is involved, but there is no need to write. It is difficult to score essay tests objectively and accurately, whereas objective tests can be easily scored objectively and accurately. So it is easy. Objective जो questions होते हैं, it is more, they are more objective in nature, and you can score them accurately in comparison to essay type questions. The reason being, uh, because there are subjectivity involved. Uh, Someone may score same answer like 5 marks out of 10. Some may score them like 8 or 6 or 7. That may happen in essay type questions, but it can be avoided in MCQs or short answer type short questions. In objective type test, the quality of the item is dependent upon the skill of the test constructor, but in essay type test, the quality of the item is dependent on the scorer's skill. So up that is again the because MCQs fill in the blanks to one word answers. They are basically you can say uh, they are they require more skills from the side of the person who is creating that question, as we discussed yesterday, because that requires that should be similar, there should not be any ambiguity, there should not be any like discriminative value, so that easily they can discriminate one options from other. So that is what MCQ or single word questions or fill in the blanks or matching requires. And other thing is when it comes to
like essay type test, the quality of the item is dependent upon the scorer skills. Ki how the scorer will score that answer. Suppose someone has written very good answer, so one scorer may give you good marks, other may say average, may give you the average marks, and it also depend because मैंने भी कई सारी copies and everything I have checked. So what happened is, suppose there are 10 people जिनका कॉपी मैं चेक कर रहा हूँ, तो और सपोज पहली कॉपी में ही जो 10 वाला है, जो एक पहली कॉपी जो मैंने चेक की, एंड आई स्कोर्ड 7 or 8, so that will set like out of 10, so that will set a criteria कि 10th वाले ने कैसा किया है, उसके बेस पे जो 10th कॉपी मैंने चेक की या कोई भी पहले जो कॉपी चेक की मैंने फर्स्ट कॉपी, सो उसमें कैसा लिखा हुआ है, या मैंने कोई बहुत अच्छी कॉपी पहले ही चेक कर ली, सो बाकी की मार्क्स उसके कंपैरिजन में मैं देने की कोशिश करूंगा. सो दैट आल्सो हैपेंस. In objective test items, no matter how well they are constructed, permit and encourage guessing by the examinees. And whereas essay test items, no matter how well they are constructed, permit, encourage bluffing by examinees. So MCQs, one word matching, they like they promote guesswork. And text जो ऐसे टाइप है उसमें कई बार हम क्या करते हैं कि हमें नहीं भी पता है, वी डोंट नो द आंसर, बट एग्जैक्ट मिलता जुलता कुछ हमें पता है, सो विल राइट, वी यूजुअली राइट एंड वी आल्सो गेट सम मार्क्स इन दैट. So that happens. Assignment of the numerical scores in essay item is entirely in the hand of scorer, whereas assignment of the numerical score in objective type test item is entirely determined by the scoring key of the manual. तो जो स्कोरिंग है, अगर हम साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में बात करें, तो अगर हम देखें रोसाक को, सो द स्कोरिंग ऑफ द रोसाक इज टोटली डिपेंडेंट ऑन scorer, whereas if we talk about 16 PF, MC, MCMI, MMPI, everything is well designed, and you will score using a scoring key, and also that, and there is no biasness or anything involved from the side of researcher or clinician. Similarities between essay type and objective types. What are the similarities? An element of the subjectivity is involved in both objective type as well as the essay type test. In objective type test, subjectivity is involved in writing the test item. Subjectivity involved हो गई कि जो person चाहता है उस तरह के question बनाएगा. And selecting particular criterion for validation of the test. In essay type test, subjectivity is involved in writing the selecting द आइटम. इन ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या होगा, उसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है, कैसे लिखा जाएगा उसमें सब्जेक्टिविटी आ सकती है. एंड सिमिलरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी सिमिलरिटीज सब्जेक्टिविटी आ सकती है. इन बोथ ऐसे टाइप test as well as the objective type test, emphasis the placed on the objectivity interpretation of the test scores. So दोनों में ही हमारा हम वी ट्राई टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी एज मच एज पॉसिबल. बाय ऑब्जेक्टिविटी इट मेंट इट स्कोर मस्ट mean nearly the same to all observers and grader who have assigned it. So objectivity is like if I score the same thing, you score, or anybody else like they try to score it, so that should be similar. So that is easy to achieve in objective questions or shorter questions like fill in the blanks, matching, and MCQs or two option questions, right? Any education achievement such as ability to spell English words, proficiency in grammar, performance in history, geography, education, psychology can be measured through the essay type test or objective type test. तो दोनों तरीके से ही हम मेजर कर सकते हैं किसी की भी परफॉर्मेंस. अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है वो ये कि इनिशियली अगर आप देखते थे तो ज्यादातर ऐसे टाइप क्वेश्चंस आते थे. नाउ ए डेज आई थिंक फ्रॉम लास्ट 10 years जो बोर्ड्स हैं, डिफरेंट बोर्ड्स एंड educational psychologists or educationists, what they did is they included long answer, short answer, matching, fill in the blanks, everything, so that
we can measure the performance of the child in a more objective way. General guidelines for item writings. Item writings ki guideline, how to write a good item. So these were the types of items that we have discussed till now. Now we are reaching to the point where we will discuss guideline to writing items, how you should write the good item. Clarity in writing test item is one of the main requirement for an item to be considered good. Item must not be written as verbal puzzle. मतलब हमें कोई पहेली नहीं बुझानी है. We should write items in a very clear cut way so that everyone who reads the item uh, get the same meaning out of that. Because if there is ambiguity and it is not written in a proper manner, so people can interpret the item in a different manner. Non-functional words must not be included in the item as they tend to lower the validity of the item. Non-functional means इनका जरूरत नहीं है. अभी अभी हम देखेंगे आगे कि कैसे देखते हैं, कैसे आइटम लिखते हैं, उनके एग्जांपल्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर, सो दैट वी विल डिस्कस. तो नॉन फंक्शनल मतलब जितना आप जो सेंटेंस है, जैसे कई सारे लोग मतलब की बात करने, सिर्फ मतलब की बात करते हैं, दे ओनली स्पीक लेस एंड देन देयर आर पीपल दे टॉक अबाउट एवरीथिंग. They suppose they are asking your name, so they will ask your name and they will tell my name is this that though, and I went there, I watched that movie, all those things they will talk about. And there is like we have difficulty to stop them. But there are people, they speak less, or they don't talk much. And there are people, they talk only whatever is required, they don't talk much. So our sentence must be like कि जो सेंटेंस हम लिख रहे हैं, दे वहां पे कोई फालतू का वर्ड या एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन नहीं होनी चाहिए. टू द फैक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा होना चाहिए विद क्लियरिटी. Non-functional word refers to those words which makes no contribution toward the appropriate correct choice of responses by the examiner. Such words are often included by the item writer in an attempt to make the correct answer less obvious or provide a good distractor. So sometimes to distract the person we do that, but we should avoid. The item writer must make sure that relevant accuracies unintentionally incorporated in the items are avoided. Such relevant accuracies reflect poor critical ability to think on the part of the item writer. They may also lead to examine to think that the statement is true. Means any kind of clue should not be there. You should not hint anything in your sentence so that the examiner can guess what you are asking. Irrelevant clues such as slang association, verbal association, length of the answer, etc. must be avoided. So any kind of irrelevant things should be avoided. Interlocking items must be avoided. Interlocking items, also known as interdependent items, or items that can be answered only by referring to other items. Like there are two two items in your test and they both are dependent on each other. If you will not read item number 1, you will not be able to answer the item number 2. तो इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए. No interlocking, no interdependency कि एक नहीं होगा. Every item must be independent. Sociometry is technique used to study the effect and structure of the group, true or false. It is a kind of projective technique. अब देखो, this is a sociometry and उसी के बेस पे ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है. अगर पहला क्वेश्चन नहीं होगा तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो irrelevant है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए. It was developed by Moreno et al. Then again, this question is also dependent on this one. So these kind of question must be avoided. The above example illustrate the interlocking item. Answer to items 2 and 3 only be given when the examiner knows the correct answer to item 1. Such items should be avoided because they do not provide a equal chance
for all the examinees to answer the item. So this kind of items should be avoided. We call them interlocking interdependent items. So we should not use those kind of items in our when you are constructing a test and writing a item, right? The item must not be too easy or too difficult for the examinees. ना तो बहुत इजी ना तो बहुत ही डिफिकल्ट। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये आइटम एनालिसिस जब आएगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा आइटम डिफिकल्ट है और कौन सा आइटम इजी है। The level of difficulty of the item should be adaptable to the level of the understanding of the examinee। तो एग्जामिनी के लेवल का होना चाहिए। अगर आप 15 इयर्स के बच्चे के लिए एग्जाम बना रहे हैं तो अलग होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 6 के स्टूडेंट्स के लिए अलग होगा, 7 के अलग, क्योंकि उनका कॉग्निटिव लेवल अलग अलग है। उसी तरह से साइकोलॉजिकल टेस्ट हम इन जनरल बनाते हैं, तो जो कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन लोग हैं, उनके लिए हम बनाते हैं। Use of the stereotyped word either in the stem or in alternative response must be avoided. These facilitate the rote learners in guessing a correct answer. So any kind of stereotyped words we should not use. Moreover, such stereotyped words fail to discriminate between those who really know, understand the subject and those who do not. Suppose there is something, suppose you want to check the IQ of children, है ना? And nowadays there is a lot of media exposure to everyone, and you have included the question, who is the Prime Minister of India? So everyone knows. How you will differentiate who is more intelligent, who is not? Even the person who is less intelligent, or like they don't have any interest in these kinds of general science questions. So but they watch TV everywhere, on every news channel, on every gully mein aap jaoge dekhoge there is something or other written about prime minister. So that item is not a good item, because it can be answered by anyone, and it won't this item won't be able to differentiate the IQ of children. So that is one example that I have. So एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा रिलेवेंट हो, जो पढ़ता है, जो जानता है, वही उसको आंसर कर पाए। एंड दिस इज द थिंग जिसमें आप आइटम की डिफिकल्टी भी दे सकते हो। तो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, बहुत लो भी नहीं होनी चाहिए। बहुत हाई होगी तो क्या होगा, कोई आंसर नहीं कर पाएगा। अगर बहुत डिफिकल्टी लेवल लो है तो सारे लोग आंसर कर जाएंगे, तो उनकी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी वो कम हो जाती है। चाहे वो डिफिकल्ट हाईली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो, चाहे वो हाईली इजी क्वेश्चंस हो, तो वहां पे सब तरह के क्वेश्चन होने चाहिए। ग्रेजुअली उनकी डिफिकल्टी बढ़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द एज। अगर आईक्यू का हम करते हैं तो कोई भी आईक्यू टेस्ट आप देखोगे तो जैसे आप कुछ भी करते हो तो उस उनकी हर एक सब टेस्ट में उनकी डिफिकल्टी विद स्टेज बढ़ती जाती है। सपोज उसने एक जैसे ब्लॉक डिजाइन है, तो उसने पहला बना लिया तो नेक्स्ट वाला उससे डिफिकल्ट होगा, उससे बाद वाला उससे डिफिकल्ट होगा, उसके बाद वाला उससे डिफिकल्ट होगा। दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। तो वो हमें यूज नहीं करनी है ऐसी चीजें। Moreover, such stereotype words fail to discriminate between those who really know and understand the subject, those who do not. The stereotype word do not provide a adequate discriminatory measure of intent। लोग कैसे discriminate करें? The most obvious way of getting rid of such words to paraphrase the word in a different manner so that those who really know the answer can pick up till meaning, है ना? तो या तो उसको रिफ्रेश करें ऐसे कि जिस तरह से मान लिया कि उसको हम रिफ्रेम कर सकते हैं कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर का नाम पूछना है और तो डायरेक्टली पूछते हैं तो आपको सीधे सीधे पता लग जाता है। तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, हु इज द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, है ना? दैट काइंड ऑफ थिंग यू कैन आस्क। सो इस तरीके से क्वेश्चंस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जनरल मेथड ऑफ स्कोरिंग एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट आइटम्स, द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट केप्ट इन व्यू व्हाइल स्केचिंग द मेथड ऑफ स्कोरिंग। अब मेथड ऑफ स्कोरिंग हम कैसे बनाएं, वो उसके लिए क्या है, इट मस्ट नॉट टेक मच टाइम,
ज्यादा टाइम, इसीलिए क्या होता है, कीज होती है हमारे पास, कीज रखिए. नाउ इट इज वी आर यूज कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस लाइक पर्सन हैज गिवन आंसर एंड यू इमीडिएटली कैन क्रिएट a report and you can discuss with your client. So it must not take time, it must not be such uh, that only a highly trained person can adopt it. है ना, ऐसा भी ना हो कि बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत हो कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और टेस्ट सीखने के लिए आपको 6 महीने लगाने पड़ रहे हैं, कोई नया टेस्ट आया, बिकॉज टेस्ट चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम. इट मस्ट इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. हियर मींस इंटरपर्सनल एग्रीमेंट अमंग द different scorers. It differ if differs persons are scoring the same test. The method of scoring must be such that all of them arrive at identical conclusion. ये ऐसा स्कोरिंग सिस्टम हो कि कोई भी स्कोर करे, कोई भी उसकी रिपोर्ट्स बनाए तो एक जैसी बने, मतलब ऑब्जेक्टिविटी होता है. मेथड ऑफ स्कोरिंग शुड प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्यूरेसी. जितनी मैक्सिमम एक्यूरेसी हम क्रिएट कर सकते हैं, हमें मेंटेन करनी है या क्रिएट करनी है. देन ओवरले की मेथड, ये आपको पता है कीज होती हैं जो टेस्ट, बिकॉज यू ऑलरेडी यू ऑल आर like MS psychology students, so you already use some or other test, so there are keys. You take answers on the answer key and then you put the key on that and you get the number of items the people have done correctly. So that kind of things are overlay key, you can say. So in this method, cut out key is prepared, that is window which may display the answer to each item on each page to be prepared. The correct answer are written just below the window and subsequently the key is overlaid upon the each page or answer sheet, you can say, a manner that through the which the window the answer given by the examinee can be seen and compared with the correct answer written below in the window. The examinee's total score of the sum of the points given on each correct answer. Such method can also be used for scoring, matching and completion items. So ये इसके अंदर आता है जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम इसको करते हैं या देखते हैं. ठीक है. Now, stripe key method. In this method, the correct answer to each item is printed vertically in stripes of the papers and cardboard. The answer are printed in such a way that they run parallel to their respective items on the test. किस आप में से किसने किसने मिसिक किया हुआ है, मिसिक या वेपिस? मलिन्स इंटेलिजेंस स्केल और वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर एडल्ट किया है आप में से किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Wechsler intelligence scale. हाँ ठीक है. उसमें एक टेस्ट, सब टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोडिंग. Yes, sir. है ना. क्या होता है कोडिंग में कि कुछ डिजाइन या नंबर्स हमें बनाने होते हैं, उसके ऊपर हम रख लेते हैं और देख लेते हैं कौन सा आइटम ऊपर से मैच कर रहा है, एक जैसा बना है नहीं बना है, और उसकी स्कोरिंग कर लेते हैं. तो दैट इज स्ट्राइप की मेथड. आया समझ में? Yes, sir. हाँ. तो आफ्टर मैचिंग द आंसर्स with the answers printed on the stripe, they are marked as adjacent vertical column on the left of the respective item. The examinee total score is the sum of the point given for each correct answer. So एक एक जो करेक्ट आंसर्स होते हैं उनको हम स्कोर करके नोट डाउन कर लेते हैं. वही हमारा रॉ स्कोर होता है. फिर अगर उसे हमें कन्वर्ट करना है स्टैन स्कोर और स्टेनाइन स्कोर्स में, देन हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है. तो ये था टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, है ना. हाउ टू अवॉइड राइटिंग बैड आइटम्स जो काम के नहीं है हमारे, तो वो था. नाउ वी आर कमिंग टू आइटम एनालिसिस. दिस इज मोर टेक्निकल थिंग. सो आइटम एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है. आइटम एनालिसिस क्या है? Examination of individual item on a test. When you are creating test, each and every item is analyzed by you. Then the test as a whole, for its difficulty, appropriateness, relationship to the rest of the test. यानी वो कितना डिफिकल्ट या इजी है,
कितना appropriate है, whatever you want to measure, and relationship to the rest of the test, और दूसरे जो टेस्ट के आइटम्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है. Help test designers determine which item to keep, modify, discard, or given test, and how to finalize the score of a score of a student. तो अब ये जो आइटम एनालिसिस है वो मुझे हेल्प करती है किस चीज में, ये फाइंड आउट करने में कौन से आइटम्स हमें रखने, क्योंकि कई बार जब हम टेस्ट बनाते हैं, सपोज 100 आइटम टेस्ट हमें डेवलप करना है, तो we'll prepare approximately 500 or more items, है ना, and they will be checked by the experts कि कैसे इसमें से कौन से आइटम इजी हैं, कौन से डिफिकल्ट हैं, क्या ऐड करना है, क्या हटाना है. तो ये जो सारी प्रोसेस है जिससे हम एक बेहतर टेस्ट डेवलप कर सकें, है ना, ये आइटम एनालिसिस का प्रोसेस है कि एनालाइज करना एक एक आइटम को. If you improve the quality of the items on a test, you will improve the overall quality of the test, hence improving both reliability and validity. जब आपका टेस्ट का एक एक आइटम बेहतर होगा, अच्छा होगा, है ना, क्वालिटी आइटम होगा, तो आपके टेस्ट की भी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी. और क्वालिटी इंक्रीज होने का मतलब सिर्फ इतना है कि योर टेस्ट विल बी मोर रिलायबल एंड वैलिड. सो आपके टेस्ट की रिलायबिलिटी एंड द वैलिडिटी भी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या है, आई थिंक मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, है ना, तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं. अगर होगा यहाँ पे तो हम करेंगे. ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइटम एनालिसिस, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, व्हाई वी डू आइटम एनालिसिस, है ना. आइटम एनालिसिस इंडिकेट विच आइटम्स आर डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेटली डिफिकल्ट और इजी. इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी हमें स्टेब्लिश करने में हेल्प करता है आइटम एनालिसिस, so that we can keep moderately difficult questions, some easy questions, some difficult questions, so that is how we like make a proper test. So how we do that, वो आगे की स्लाइड्स में आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे. It also provide indices of ability of the item to discriminate between inferior and superior. और ये हमें बताता है कि कौन सा आइटम इंफीरियर है, कौन सा आइटम सुपीरियर है. और इसको करने के लिए कैसे हम करते हैं, आइटम वैलिडिटी चेक करते हैं कि हाउ मच योर आइटम इज वैलिड. व्हाट इज द वैलिडिटी, कैन एनीबॉडी टेल, एनीवन? मैंने बताया है और आपको पता भी होगा, वैसे भी पढ़ा होगा. व्हाट इज वैलिडिटी? If we are testing what we are supposed to do. Right. So whatever we want to assess, like does that item is assessing the same thing or something else? That is the validity. So एक तो test का validity होता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं item का validity. When your item's validity is high, then your test validity will be high, right? So it tells the effectiveness of the distractors in MCQs. अभी बताता है कि distractors कौन कौन से हैं जो आपको distract कर रहे हैं. It also indicates why particular item in the test has not functioned effectively, how this might be modified so that its functional significance can be increased. So ये अच्छा हमें ये पता लग गया है कौन सा आइटम रिलायबल है, कौन सा वैलिड है, और आइटम की वैलिडिटी क्या है, आइटम की डिफिकल्टी लेवल क्या है. If we get to know that thing, then we can modify our test accordingly so that the validity and the reliability of the test of the test can be increased. So that will be a good test. Yes, Tejas, you switched on your mic. You want to ask something? सनोज मैं बस कंप्लीट करने वाला था. Okay. So types of item analysis. Now we are coming to how we do item analysis. What kind of analysis is item analysis? So that
two most common indices with item analysis reveals are the index difficulty जो मैंने अभी बात की थी, है ना, and the index discrimination value, how they are discriminated from each other. Item analysis also aim to knowing the effectiveness of the distractors. मल्टीपल चॉइस इन मल्टीपल चॉइस आइटम्स, मल्टीपल चॉइस में डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं कि डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको. बात की थी ना, सपोज हु फाउंडेड द लर्निंग, क्या कहते हैं, लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरिज्म. So there will be lot 4 items maybe or similar kind of thing. So they are distracted like Thorndike, Skinner, है ना, Wolf, or you can say Pavlov. So abhi they are all behaviorists. So who established the behaviorism first? So they are distracted. Only one thing is right. तो उनकी एनालिसिस भी हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज आइटम डिफिकल्टी लेवल. तो कैसे हम इंडेक्स डिसाइड करते हैं. तो बहुत इजी है, आप देखेंगे तो proportion of the test takers who answer an item correctly. For maximizing validity and reliability, the optimal item difficulty level is 0.5. Level is 0.50. However, this does not mean every item should have difficulty level of 0.50. Simply that the average of all items should be 0.50. अब देखो डिफिकल्ट, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा. सपोज किसी आइटम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मैक्सिमम 1 हो सकता है ना, जैसे कोरिलेशन में हम देखते हैं. तो एवरेज जो आपका डिफिकल्टी लेवल है 0.5 होना चाहिए, बीच में होगा कहीं ना कहीं, तभी सारे लोग कर पाएंगे. लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारे आइटम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो 0.5 ही हो. बट वन थिंग दैट इज मैंडेटरी कि जो सारे आइटम्स का जो एवरेज है वो, अब एवरेज अर्थमेटिकल मीन दैट यू नो, है ना. सो वो जो होना चाहिए वो 0.05 होना चाहिए, क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जैसे इसको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं, इसमें हम बोलते हैं एक्सट्रीम पे केसेस हैं. सपोज आईक्यू की अगर हम बात करें तो ये एक्सट्रीम केसेस हैं. ये हाई, बहुत ज्यादा आईक्यू वाले लोग हैं इस साइड में राइट में, और लेफ्ट में क्या है, बहुत ज्यादा लो आईक्यू वाले लोग हैं. बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन बिटवीन दिस, है ना. दिस इज what normal probability curve. तो any character, IQ, personality, whatever you take, statistics जो है वो assume करती है कि सारी characteristics normally distributed होती हैं. तो maximum item हमारे normally distributed होने, मतलब हमारे items normally distributed होने चाहिए. तो उस कहने का मतलब क्या है, कुछ items difficult होंगे बहुत, कुछ बहुत easy होंगे, maximum बीच में होंगे. ठीक, अब हम इंडेक्स कैसे बनाएंगे. लेट्स अंडरस्टैंड. स्टैटिस्टिकल मेथड जो होता है वो होता है, बट लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी डू. सपोज यू हैव प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ 100 आइटम्स, राइट. अब वो 100 आइटम्स आपको टेस्ट बनाना था एडोलसेंस के लिए, लेट्स से लाइक 12 to 15, 16 इयर्स के बच्चों के लिए आपको बनाना है टेस्ट. तो आपने उन 100 बच्चों के ऊपर, आपने बच्चों को लिए, उन बच्चों के ऊपर वो 100 क्वेश्चंस, आइटम्स जो आपने क्रिएट किए वो उनको दिए, ठीक है. अब उसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों ने सॉल्व कर लिया, कौन सा क्वेश्चन एक भी बच्चे ने सॉल्व नहीं किया या बहुत ही कम बच्चों ने सॉल्व किया. तो ये क्या इंडिकेट करता है, आइटम का डिफिकल्टी लेवल. तो आपके पास स्कोर आ गया. सपोज क्वेश्चन नंबर 10 को सारे के सारे बच्चों ने कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 को कोई भी बच्चा नहीं कर पाया. नो स्टूडेंट हैज लाइक वाज एबल टू डू दैट क्वेश्चन. तो इसका मतलब क्या हो गया, ज्यादातर बच्चों ने 5 नहीं किया. तो इट इज ए डिफिकल्ट आइटम एंड 10 इज डन बाय एवरीवन. इट इज ए वेरी इजी आइटम. And other questions जो है that is done by 50% or 60% people, some of them
some of the question had been done by like 70% people, 30% people, ये इस तरीके से है। तो ये आपका डिफिकल्टी लेवल। तो टेस्ट बनाना, जो कंस्ट्रक्टिंग ए टेस्ट इज नॉट ए इजी टास्क एक्चुअली, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड मनी। तो आइटम एनालिसिस, आइटम इंडेक्स इस तरीके से कुछ क्रिएट हो जाता है। फिर स्टेटिस्टिकली हम देख लेते हैं कौन सा आइटम हमारा ज्यादा है, क्या कहते हैं, डिफिकल्ट है, कौन सा इजी है। अब हम मॉडरेटली डिफिकल्ट, जो ये पॉलिसी है हमारी, जो हमने बताया, ऑप्टिमल आइटम डिफिकल्टी इज 0.50 के जो आइटम्स होते हैं वो ले लेते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सारे आइटम्स ही 0.5 के होंगे। हाँ, उनका एवरेज जो है 0.50 होगा, किसी का 3 होगा यानी वेरी इजी आइटम, किसी का 8 होगा दैट इज वेरी डिफिकल्ट आइटम। तो दैट काइंड ऑफ थिंग वी डू। क्लियर है? ये समझ में आया क्या करते हैं, कैसे हम एस्टैब्लिश करते हैं? Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ हाँ, बोलिए तेजस। Sir, ये 0.50 exactly how will you find out? ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है, अभी हम उसके बारे में बात करें। जैसे हम कोरिलेशंस निकालते हैं, Right. है ना, जैसे जैसे हाँ। हमारा कोरिलेशन होता है कि कोरिलेशन मतलब इफ दे आर हाईली कोरिलेटेड, अगर टू आइटम्स, मतलब जो मिडिल के आइटम्स होंगे, ऐसे समझो, जो Yeah. मिडिल के आइटम होंगे तो दे विल बी कोरिलेटेड बेसिकली, Yes, yes. है ना। एंड जो ये होगा वो इतने कोरिलेटेड नहीं होंगे। तो ये प्रोसेस होता है, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या कहते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक, Okay, sir. Thank you. अब देखते हैं आगे, डिटेल है और भी। So if an item is answered correctly by 90% of the examinees, it is obviously means that item is relatively easy. Likewise, if an item is answered correctly only by the 3% of the examinees, it means that the item is a difficult one and is not discriminating well among examinees of the higher level trade, being measured as if discriminating only among superior and genius examinees. यानी कि अगर कोई आइटम 90% लोग सही कर रहे हैं तो इजी आइटम है, और कोई आइटम ऐसा है जिसको सिर्फ 3% लोग ही ठीक से कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, वो बहुत ही डिफिकल्ट आइटम है। तो वो आपको नॉर्मल लोगों में डिस्क्रिमिनेट करके नहीं बता रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ जीनियस और हाई आईक्यू वाले लोगों को ही डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा। क्योंकि अगर बहुत डिफिकल्ट है तो जो नॉर्मल लोग हैं जिनका आईक्यू एवरेज है, वो लोग तो वो आइटम नहीं कर पाएंगे ना। और तो वो डिफरेंशिएट किसको कर सकता है, वो जो डिफरेंशिएट करता है जीनियस, और जीनियस है, सुपीरियर्स है, उनको करेगा। बहुत इजी आइटम है तो वो जो बहुत ही लो आईक्यू वाले लोग हैं उनमें डिफरेंशिएट कर सकता है कि इसका थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है। एवरेज लोगों के लिए काम दोनों ही नहीं करेंगे। ठीक है। If a test is composed only of items of higher indices of difficulty or only the lower indices of difficulty, it will never be a good measuring instrument. अगर आप उसमें जो 90% यानी इजी आइटम, 3% वाले या जो बहुत डिफिकल्ट आइटम है उनको सिर्फ उनको ही इंक्लूड करेंगे अपने टेस्ट में, तो वो टेस्ट अच्छा टेस्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो आपके टेस्ट की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करता है। वो इन जनरल लोगों के लिए टेस्ट ठीक नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें टेस्ट ऐसा चाहिए नॉर्मल सबके ऊपर। Any test to be called good measuring instrument must have some items of higher indices of difficulty, which should usually placed at the beginning of the test, है ना। Some items of the moderate indices difficulty ranging from 40% to 60%. तेजस अभी समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Now it's making sense. जो मैक्सिमम 50-60% लोग कर ले, दैट इज ए मॉडरेट डिफिकल्टी आइटम, सो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इट इज दैट सिंपल। सो व्हिच should preferably appear after that, and some items of lower indices of difficulty which should appear last of all. Thus the test item must have normal distribution of respect to the indices difficulty. जो मैंने बोला था ना कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना चाहिए। 100 आइटम है तो क्या होता है, आप ये देखो ना कि यहां से यहां तक कितनी पॉपुलेशन आ जाती है आपकी, प्लस ये होता है ना 0, है ना, +1 सिग्मा -1 सिग्मा +1 2 3, है ना। तो +-3 सिग्मा के बीच में 99% पॉपुलेशन आ जाती है आपकी, +-2 के बीच में 95 आ जाती है। तो अगर 100 क्वेश्चन का है तो 95 क्वेश्चंस यहाँ वाले आएंगे मॉडरेट डिफिकल्टी के,
ठीक है, 2.5 इधर 2.5 इधर आते हैं। ये आपने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ा होगा, स्टैट आएगी तो मैं आपको फिर से कराऊंगा। तो जैसे बाकी की स्टैट हम यूज करते हैं वैसे यहाँ पे भी हम यूज करेंगे कि भाई कितना एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो एफ टेस्ट और जैसे 16 पे देखा ना आपने, जो हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, फैक्ट एनालिसिस, हाउ दे डिस्क्रिमिनेट, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऑल दोज थिंग्स आर देयर इन आवर स्टैटिस्टिकल टेस्ट। ठीक है, ठीक है तेजस, तो वो सारी हम क्या कहते हैं उस तरह के टूल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स। Sir, we will also do T test and F test and all, sir. हाँ, एफ टेस्ट क्या करता है, आपने 16 पीएफ देखा ना, 16 पीएफ क्या है, 16 एफ टेस्ट का मतलब है फैक्टर एनालिसिस। Factor, yeah, exactly. ठीक है, फैक्टर एनालिसिस शोज दैट इफ देयर इज सम ऑब्जर्वेबल, यानी कि देयर इज सम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, सो उसके पीछे कुछ लैटेंट पैटर्न्स होते हैं, ये मान के चलते हैं, है ना। सपोज अगर कोई एक कंपनी का मोबाइल है, देयर इज सम स्मार्टफोन ऑफ सर्टेन कंपनी, और उसको लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोग उसी को खरीद रहे हैं, सो वी हैव, तो वो एक उसका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, वो हो गया बाइंग। एंड उसके पीछे लैटेंट फैक्टर क्या है जो इस मोबाइल को खरीदने के लिए क्या कहते हैं, इन लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या कहने का मतलब है कि जो आइटम है आपका, उस आइटम में स्कोर में, और उसको ज्यादातर लोग सॉल्व कर ले रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ अंडरलाइन फैक्टर्स होंगे। तो अगर हम वो अंडरलाइन कॉग्निटिव फैक्टर्स मुझे पता लग जाते हैं, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ ना कि कौन सा आइटम कैसा है, आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, क्या चीज इजी है, ज्यादातर लोग What makes them easier and what makes them difficult? Understand? Right. Right, and we can group together. This is 16 पे अपने ग्रुप कर दिया गया, extroversion, introversion, all those things. Okay, So that's समझ रहा हूँ सर, अब समझ में आया सर मेरे को। ठीक है, okay. That's how we. So method of item validity index. तो अब हमारा आइटम डिफिकल्टी का क्लियर हो गया, है ना। नाउ वी आर कमिंग टू मेथड्स ऑफ आइटम वैलिडिटी इंडेक्स। आई थिंक ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, इट इज ऑलरेडी 6:53, तो वो जल्दी में होगा तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, सो मेरे जो जजमेंट है मेरे तो आइटम वैलिडिटी इंडेक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और हमारे पास 5-6 मिनट का टाइम है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैट और इन जनरल यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एमफिल आल्सो, आई कैन आंसर। सो अगर कोई क्वेश्चन है आपका, अमित जी, लक्ष्मी, प्रेरणा, तेजस, No, sir. समझ में आ रहा है? और एनी सजेशंस Yes, sir. अगर आपका कोई सजेशन है कि इसमें और बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं क्लास, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। सो विल ट्राई टू इंक्लूड दोस थिंग्स इफ इट इज पॉसिबल। Sir, I have one doubt. हाँ, मेरा ये डाउट है सर, are we going to learn how to come up with these tests and how we make them, like chi-square test, T test, F test? everything will do. Okay, great sir. That's it. That is, this is our syllabus, है ना। Let's जी, see. जी। So we are at like not exactly, मेरा जो फोकस रहेगा, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, SPSS, SAS, राइट, Right. है ना, तो उसमें यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक चीजों को अरे मैं सर बताऊं, बहुत प्रॉब्लम है सर, मेरे SPSS में बहुत प्रॉब्लम है, आई एम नॉट एबल टू यूज इट। हाँ नहीं वो यूज करने में एक्सेल से काम चल रहा है सर मेरा। देयर आर टू थिंग्स, एक तो है टेक्निकलिटी। अगर आपको उसमें हेल्प चाहिए तो मेरे को बता देना। वी हैव ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे पूरा का पूरा SPSS हमने कराया हुआ है ना, हमारे टीचर्स ने। तो खैर वो बात की बात, तो कहने का मेरा मतलब है हमें ये समझना जरूरी है कि, क्योंकि क्या होता है, स्टैट से हम भागते हैं, बीइंग ए साइकोलॉजी स्टूडेंट मैं खुद भागता था दूसरों को, ट्रू है ना, क्योंकि हमें लगता है इंटरेस्टिंग नहीं है, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, दैट काइंड ऑफ थिंग। लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, चाहे हम PhD कर रहे हैं, MPhil कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, वो पीछा छोड़ता नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें, मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कि भाई क्या होता है, कौन सी टेस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पे यूज नहीं करेंगे, किस डेटा के साथ में क्या यूज किया जाता है, क्या यूज नहीं किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स वो मैं कवर करने की कोशिश, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो इवन इफ
आपको नहीं भी आता है क्या